Hello, dear kids. Namaskar. How are you all? Everyone is fine at your home? Okay, good. So, what we learned yesterday? हमने yesterday क्या learn किया था? Yes, we learn about measurement of length and measurement of mass. Yes, ये दो चीज़ें हमने learn की थी कल. Do you remember? Do you remember everything what we learned? So, now say me, what is the standard unit for measuring the length? What is the standard unit for measuring the length? Meter. Yes. कौन कौन right बोला था? Yes. And then what is the standard unit for measuring mass? मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? किलोग्राम. Yes, I hope you all have speak the right answer. Good, very good. So, and also I have given you some homework to complete, which on page number 109, 109. सबने कर लिया? Good. So now first of all let's check the homework and then we will start our today's CW. Okay, today I am going to explain you the 3 topics. First let's check the homework, फिर हम स्टडी करते हैं the next topic which is remaining in this chapter. Okay, so take out your test book, come on page number 109. Good. So now let's check the homework. If you have written any wrong or any spelling mistake, you can correct it. So correct the false statement by changing the underlined words. Right? We have to correct the false statement and जो underlined words जो है वो wrong दिए गए हुए हैं. So we have to write there the correct answer जिससे ये statement true हो जाए. So first one, the standard unit of length is kilogram. The standard unit of length is kilogram? No. So what you all have to do is you have to cut the kilogram and you all have to write there meter because the standard unit of length is meter. Second one, the standard unit of mass is meter. क्या standard unit of mass meter है? No, it is kilogram, right? So, cut the meter and write there kilogram. Third one, dash is the extent of something from one end to another. Means हमें एक ये कौन सी चीज़ है जो एक्सटेंड होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक? It is mass? No, it is length, right? So we have to cut the mass and we have to write their length. Fourth one, mass of an object is the amount of length in it. क्या मास में हमें लेंथ की पता चलता है कि इसमें कितना लेंथ है, इसमें कितना अमाउंट ऑफ लेंथ भरा हुआ है? नो, इसमें क्या पता चलता है कि कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके अंदर, राइट? सो वी विल कट द लेंथ एंड वी विल राइट देयर सब्सटेंस. Write the spelling of substance. Next, mass is measured using a ruler. क्या मास को हम रूलर से मेज़र करते हैं? नो, रूलर किसका इंस्ट्रूमेंट है? फॉर मेजरिंग द लेंथ, राइट? मास को हम क्या
Mass is used for measuring the weight, right? So we will write there weight. If you have written weighing balance, so that is also your correct answer. Their weighing balance will come, okay? Their weighing balance will come, not weight will come. Let me correct it. So fifth one, mass is measured using a weighing balance. Correct now. Now it is right. So we have checked the yesterday's homework. So now let's come to the CW part. Today we are going to learn about the three topics, that is measurement of capacity, right? Measurement of temperature and measurement of time. ओके आज हम तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ time. Good. So let's start with the topic measurement of capacity. What do you mean by capacity? So capacity means क्या dear kids? Capacity is the amount of liquid a container can hold. एक container, right? एक कोई भी चीज़ उसमें कितना liquid समा सकता है, right? Capacity means क्या? एक ऐसा कंटेनर मीन्स व्हाट वी कैन से दैट कोई भी थिंग, राइट, जिसमें हम लिक्विड को पॉर करके रख सकते हैं, जिसमें हम लिक्विड को रखते हैं, राइट. सो व्हाट इज कैपेसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, राइट. द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर, राइट. कॉमनली यूज्ड यूनिट कौन सी है फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी? लीटर, यस. एंड इट इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट भी लीटर ही है. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिली लीटर्स, राइट. अगर हमें बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को मेज़र करना है, सो हम किसकी हेल्प से मेज़र कर सकते हैं? मिली लीटर की हेल्प से. जैसे कि बॉटल ऑफ सिरप, राइट. फिर जो आपके जो कप होता है उसमें कितना ml ऑफ लिक्विड समाएगा, उसमें कितना लिक्विड समा सकता है. So for that we have to use the milliliter unit. For large amount of liquid are measured in kiloliter, right. kiloliters भी होते हैं, हाँ, ये आपको न्यू आया होगा, मैथ्स में भी आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है. You just learn about liters and milliliters. But अगर हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना है, so we will use the unit kiloliters. Okay, 1 kiloliter is equal to 1000 liter. 1 kiloliter कितना होता है? is equal to 1000 liters. 1 liter is equal to 1000 milliliter and 1 liter कितना होता है? is equal to 1000 milliliters. सो जब किलोलीटर किस में यूज होगा डियर किड्स? डू यू नो दैट? किलोलीटर किस में यूज होगा? फॉर मेजरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड, राइट. बहुत अमाउंट ऑफ लिक्विड जब आ जाता है उसको मेजर करना है. सो तब कौन सा यूनिट मेजर करेगा? उसको किलोलीटर्स. सो फॉर मेजरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड we use the unit called kiloliters. Likewise जब हमें कुछ भी टैंकर्स जो होते हैं बड़े बड़े, राइट, अगर टैंकर्स का लिक्विड हमें पता करना है, सो व्हाट वी विल यूज? किलोलीटर यूज करेंगे फॉर मेजरिंग
the amount of liquid a tanker has, right? We will use the kiloliter unit. Do you understand that 1 kiloliter is equal to 1000 liter and 1 liter is equal to 1000 milliliters, right? ये दोनों आपको याद रखने होंगे. Capacity is measured using measuring cylinders and measuring jar and cup. कैपेसिटी को हम किससे मेजर करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर्स भी आते हैं. यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड मेजरिंग सिलेंडर. एंड कप्स, जार, हम बकेट भी यूज़ करते हैं. यस और नो? सो दीज आर दी instruments which are used for measuring the capacity. Okay, do you understand about measurement of capacity? Now let's move to the measurement of temperature. Measurement of temperature. Measurement of temperature. Okay, let's start this topic. Temperature is the measure of how hot or cold an object is. टेम्परेचर से हमें क्या पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, राइट? टेम्परेचर इज यूज फॉर मेजरिंग हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. Temperature is measured in units called degree Celsius or degree Fahrenheit. Right? ये दो units होते हैं for measuring the temperature. What are the two units? Celsius and Fahrenheit. Degree Celsius is denoted by the symbol this, degree Celsius. राइट, सेल्सियस को हम कैसे सिंबल में बता सकते हैं? लाइक दिस वे, डिग्री, दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री एंड सी मीन्स सेल्सियस, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट बाय द सिंबल लाइक दिस वे, राइट? ऐसे डिग्री, दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री एंड फ़ारेनहाइट का एफ. टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर. टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं? बाय यूजिंग थर्मोमीटर. थर्मोमीटर से हमें पता चलता है कि हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. जब हमें फीवर आता है, राइट, या फिर हमें ठंडी लगती है, सो डॉक्टर भी पहले थर्मोमीटर से हमें चेक करते हैं कि कितना डिग्री हमें हॉट है और कितना हम कोल्ड है. So what doctors use? They also use this type of thermometer. And हमारे घर पे भी अभी किसी किसी के घर पे भी, आपके घर पे भी होगा, राइट? थर्मोमीटर होगा. सो जिससे हमें पता चलता है कि कितना हॉट या फिर कोल्ड एक ऑब्जेक्ट है. हमारी बॉडी का भी हम टेम्परेचर इससे पता कर सकते हैं. We can measure the body temperature, room temperature, and even the temperature of a place or city. हम बहुत सारी चीज़ें का मेज़रमेंट कर सकते हैं. बॉडी टेम्परेचर, हमारे खुद के बॉडी टेम्परेचर का भी मेज़र कर सकते हैं. हमारे रूम का टेम्परेचर क्या है, एंड टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस और सिटी, वो हमें भी पता चल सकती है, राइट? रूम का तो आपको इजीली थर्मोमीटर से पता चल जाएगा. एंड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लेस और सिटी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिससे हमें उस सिटी और उस प्लेस का वेदर बताया जाता है, राइट? वेदर के साथ उसमें टेम्परेचर भी दिया होता है. सो वी कैन नो दैट कि वो प्लेस पे, वो सिटी पे अभी टेम्परेचर क्या है. ओके, सो आप ये टॉपिक में क्या याद रखोगे? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर?
थर्मोमीटर. यस, एंड आप थर्मोमीटर की हेल्प से क्या पता कर सकते हैं? हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. वी कैन चेक द बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर. यस, एंड व्हाट आर द यूनिट्स फॉर मेजरिंग इट? डिग्री सेल्सियस and degree Fahrenheit. Okay, do you understand this much? Good. So now let's move to the next topic. Come on page number 110. Okay, everyone is on page number 110, 110. So this is the topic about time, measurement of time. Yes, how we use time in our day-to-day life. Time is very important. Yes or no, dear kids? So हम कैसे यूज़ करते हैं आपको पता है, क्योंकि आप अभी 3rd स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो आपको टाइम देखना तो आता ही है, राइट? द मेजर ऑफ द इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम, राइट? कोई भी 2 इवेंट्स के बीच में जो गैप होता है, राइट, जो इंटरवल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट टाइम. टाइम कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. टाइम को हम किस किस की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं? आवर्स में, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में. सो 60 मिनट्स, जब 60 मिनट्स हो जाए तो कितने आवर्स हो गए डियर किड्स? 1 आवर, राइट? 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर. 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, राइट? सो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट. And how we can measure the time? हम कैसे measure करते हैं टाइम को? Yes, by the help of clocks and watches, right? क्लॉक और वॉच हमें बताती है कि कितने बजे हैं अभी. Yes, and यूनिट्स कौन से हैं? आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड. सो डियर किड्स, अब आपके लिए एक होमवर्क है यहाँ पे. सी, हम स्कूल में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? सेमी, कितना आप टाइम स्पेंड करते हो एट स्कूल? अभी नहीं करते थे. हम कितने आवर्स बैठते थे स्कूल में? दैट यू हैव टू फाइंड, राइट? फिर आपको मुझे बताना है कि कितने मिनट्स, राइट? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, राइट? सो आप कितने आवर्स, आप कितने बैठते थे वो आप पता करोगे पहले, फिर उसको मिनट्स में बताओगे कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. तो सपोज मैं 2 आवर्स, सपोज आई एम सेइंग, सपोज मैं 2 आवर्स स्कूल में रहती थी. सो कितने मिनट्स हो जाएंगे? 120 मिनट्स हो जाएंगे. अगर मैं 3 आवर्स रहती तो 180 मिनट्स, राइट? सो लाइक दैट वे आपको मुझे बताना है कि कितने आवर्स आप रहते थे स्कूल में, फिर उसको मिनट्स में बताना है कि इतने मिनट्स, 560 मिनट्स, कि जो भी आपका आंसर आए वो आपको मुझे बताना होगा, राइट? डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? First you will say me how much hour we spent in our school. Then the answer you will change into minutes, right? वो आंसर आप मिनट्स में चेंज करके मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, राइट? वो आंसर मुझे आप व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज करोगे, ओके? गुड. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस 3 टॉपिक ऑफ टुडेज about measurement of capacity, about temperature and about time? समझ में आ गया आप सबको? Good. So, do you understand
the today's 3 topic. So now let's see the homework. Today you have to complete these questions, filling the blanks with the correct word, right, which is on page number 110. ये आपका आज का होमवर्क है. ओके, so bye kids, take care, have a good day.